Good afternoon, Anushka. Question is there on the board. Simple interest is given. Principal is asked. Rate and time is given. What will be the principal? One reason. Yes. Good afternoon, sir. May I tell? Just show in your notebooks. Who is showing? Shardul. Yes, sir. 1 second. Hmm. 25 multiply 4800 multiply by 25 is 192. Shardul, it is not correct. Try again. Bhavya is showing. Okay, fine. Bhavya got 20,000. Okay. Simple. Correct. The answer is 20,000. Yes. How Alex is getting 60? 24 by 100 become 100 by 24. This is just the double I have given. 24, 20,000 rupees. Sir, Anji. sir, why you have put 4,800 in LHS side? Because it is simple interest. We have asked principal. Okay, हमसे principal पूछा है कि आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया था, है ना? ठीक है? तो जब आपसे प्रिंसिपल या रेट या टाइम पूछेंगे तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा. Sir, Sir, I have a doubt. Yes, Jayan. sir, there is 4,800. No, can we put in it in right side? No, don't put it in right side. Then you write like this. P 24 upon 100 is equals to 400. Because it is simple interest, no? It is another side of the formula. Simple interest P upon 100. Now the simple interest itself is given. Yes, Mahalakshmi. So why didn't we put the P before, like you gave 4,800 is equal to P into 8 into 3? Then why didn't we put P before it, like you put here? I'm not getting what you are saying. Sir, I am saying that you didn't the reciprocal at 24 into P. Then why didn't we do it starting?
We can write it. Okay, we can write it in any way. We can write P into 24 or 24 into P. They are same only. Fine. Yes, sir. చెప్తారు అని నాకు చెప్తారు. Sir, please. Janvi, Janvi was asking question from the PDF I shared today. Yes. What percent of X percent of 64 is 128.48. So X bar 100 of 64 Sir, sir, Yes. sir, from where 100 came? Percentage na X percent means X upon 100. Sir, I have a doubt. Yes. Sir, question number 4 of the PDF you have sent. इसका कैलकुलेशन कैसा आ रहा है? Again divide by 8. 8 1 time 8 है ना. डिजिटल रूल हमने 6th क्लास में 5th क्लास में क्यों पढ़े? ताकि ऐसे कैलकुलेशन में हम अपना दिमाग लगा पाए. तो हमको दिख रहा है कि लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8. डायरेक्टली 8 से डिवाइड करिए. 8 1 टाइम 8 6 हो जाएगा. 8 ये 64 again 4 8 5 is 40 then x is 48 is 18.56. ये 18.56 होता है 8 से डिवाइड. Last 3 digits. Sir, again we can divide it by 8. Yeah, 8 to the 16. 2 is left. 24. 2.32 into 100. 232. 232. एट पॉइंट थ्री. पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछ रहे हैं. गूगल इज आस्किंग फ्रॉम एनसीईआरटी 8.3. क्वेश्चन What is the answer of this question? Sir, this question. But this is one PDF. Sir, that is not visible. Its answer. What is its answer? Okay, sir.
In the morning, I shared competency-based questions. Only one student out of 80 shared me the answer. Means the teacher and one student, either they are smart or they are stupid. Others are very smart, so they don't have to do. कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉड्यूल्स आपके साइंस, एसएसटी, मैथ सभी के लिए हैं. प्लीज एक्सप्लोर ऑन दीक्षा. टाइम है आपके पास, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं मैथ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो यू बिकम मैथ स्मार्ट, है ना. देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मैं टीचर्स का एग्जांपल, जैसे शास्त्री सर है ना, सो ही इज मोर मैथमेटिकली स्मार्ट देन मी, आई कैन से. व्हाई? बिकॉज़ ऐसे अगर हम मार्केट में होंगे और कोई भी कैलकुलेशन है, so he is very fast in that. So what I want actually is you people should be means math comfortable. Like कहीं भी आप डेली लाइफ में कोई कैलकुलेशन या ऐसा कुछ देखते हैं तो आप उसको दिमाग में करें, पर हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है. We don't have any habit, हम पेन पेपर लेके मैथ कर रहे हैं, और ये हमारे इतना काम नहीं आएगा. The thing is कि हम लॉजिकली सोच के कितना कर पाते हैं. So I always motivate you. I think from 5th class आपको ये चीज पता है कि मैं आप सभी को मोटिवेट करता हूं कि आप ओरल आंसर निकालना, किसी चीज को गैस करना, ठीक है ना, अपना कॉमन सेंस यूज करना, ये सब आप यूज करो बेटा. वरना फिर क्या होगा, सभी बाकी इतने इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट हैं 7th क्लास में, सब पढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज हाउ क्विकली एंड हाउ इजीली वी एबल टू ऑब्जर्व एंड सॉल्व. अभी जैसे यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, ऋतुजा इज आस्किंग व्हाट रेट गिव्स 8 what rate? हमसे रेट पूछ रहे हैं. Give the interest of 280 rupees का इंटरेस्ट है on the sum of. सम का मतलब क्या है? प्रिंसिपल. चलिए बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. Time is 2 years ना. हाँ 2 years. और रेट के बाद में ना पीए लिखा होता है, उस पीए का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पीए पर एनम. पर ईयर, है ना. वेरी गुड, मेनी ऑफ यू आर गेटिंग आंसर. क्या करते हैं ऋतुजा? How you can find rate? 560 into 2, इसको डिवाइड में ले आओ, बस हो गया आंसर. The rate will be 280 divided by 560 is double. कोई रेसिप्रोकल कुछ नहीं है यहाँ पर, सीधा मल्टीप्लाई से आप डिवाइड में ले गए. 0 0 कट. अब एडल आंसर 28 का डबल है 56. 1 by 4 is how much? क्या बात है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? $0.25 पैसा ऑन 1 रुपीज का मतलब क्या है? 0.25 हाउ मच पैसा?
25 पैसा, 25 पैसा देना पड़ेगा हर 100 रुपीज पे। Sir, how it will be 0.25%? बेटा 1/4 कितना होता है? 0.25 है ना, और हम रेट फाइंड कर रहे हैं तो रेट हमेशा परसेंटेज में, क्योंकि हमने ऑलरेडी 100 उसका लिया था। ठीक है, But when we do 1/4 into 100, it comes 25%. नो 1/4 इंटू 1/4 एक फ्रैक्शन है, उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? हो गया? Yes, sir. Yesterday I told to talk to your friends and help them. Whom you helped? Have you talked to anyone? No, sir. So please talk. Okay? Okay, sir. Sir, for decimal we have to do 4 divided by 1. हाँ? Sir, for decimals we have to do 4 divided by 1. No, 1 divided by 4. No, sir. 1 divided by 1. Yeah. 0.25. Okay. 0.25. Yes. इसका मतलब क्या है? 25 पैसा। आपको देखो हमने इस पे बात कम करी है, आपको समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल तो है 56,000, 56,000 रुपए, 56,000 रुपए आप रख रहे हो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अगर आज आप बैंक में अगर 56,000 रख देंगे 2 इयर्स के लिए, तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की जो रेट है ना, 100 रुपीज में कितना मिलेगा उससे डिसाइड हो रहा है। समझ में सबको आ रही है ना ये चीज? सिंपल इंटरेस्ट समझ रहा है कि नहीं? कुछ पूछना है किसी को? सिंपल इंटरेस्ट की कहानी क्या है कि एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल, है ना, और प्रिंसिपल कितने समय के लिए हम दे रहे हैं? वो टाइम। और रेट मतलब क्या है कि 100 रुपीज पे कितना मिलेगा या देना पड़ेगा, दो चीजें। रेट जो है डिसाइड होती 100 पे, जैसे यहाँ पे भी आया 0.25, तो 0.25 का मतलब क्या है? इट इज 25 पैसा, है ना, 1 रुपीज के लिए। तो 0.25, अच्छा परसेंटेज भी है, आप बताओगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, है ना। डेसिमल और परसेंटेज अगर दोनों रिमूव किया तो 4 जीरो आ गए। ये है 0.25 पैसा। Sir, हाँ जी, sir, you 280 divided by 560 multiplied by 2. If we took 1120, so it will same. So it will be the right answer. what 112 280 divided by Sir, if 120 280 divided by 560 into 2. Sir, we can't divide it directly by 1120. Where is 1000? ये 2 जीरो तो कट गए ना बेटा। No. हाँ तो 280 को आप डायरेक्ट डिवाइड करो 56 के डबल से। Sir, my doubt is that the 100 is down. Then why have you put 280 divided by 560 into 2? Here very carefully we just did reciprocal. Yes, हमारे पास यहाँ पे क्या है 560 into 2 it is in multiply, तो multiply से कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में। Yes, sir. हाँ, जब हमको देखो इसमें सिंपल सी बात क्या है। अच्छा तो यहाँ पर ना रेट बहुत कम थी, इसलिए इंटरेस्ट केवल 280 रुपए मिला 56,000 पे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस आप समझो। अभी सिंपल इंटरेस्ट आपको क्यों सिखा रहे हैं अभी, ताकि आप देखिए आपकी एज में आप अगर अभी आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए कोई मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आपकी एजुकेशन के लिए, तो आप उसमें इंटरेस्ट पता करिए। और मुझे प्लीज कल आप बताइएगा, चलो कल हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसकी रेट क्या इंटरेस्ट मुझे बताइएगा। जैसे बैंक में
8.5% पे है, या किसी के ब्रदर सिस्टर ने अगर एजुकेशन लोन लिया है तो उसकी रेट क्या है। तो ये सारा गेम है रेट का, ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है बॉस, फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट इज P into R into T upon 100। अगर रेट पूछा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कॉमन सेंस से लिखने का जरूरत क्या है, इसको P और T दोनों डिवाइड में चले जाएंगे और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बिकम, हाँ जी Sir, if similarly we have to find time, so this only means SI into 100 divided by P into R. This we can do. यस वेरी गुड। अगर टाइम पूछेंगे तो P R से डिवाइड कर दो, P पूछेंगे तो R T से डिवाइड कर दो। ठीक है, NFE आज सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मल सॉल्व करना ही है हमको। ठीक है, Sir, then what is amount? अमाउंट इज जैसे यशस्वी पूछ रही है उनको 9 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो 9 क्वेश्चन में अगर हमसे अमाउंट पूछा तो पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, जैसे 1200 है, यहाँ पर प्रिंसिपल रेट है 12 और टाइम कितना है 3 इयर्स। चलिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करिए। What is the amount? जो टोटल बाद में मिलेगा वो हो जाएगा, Sir, 1632. यस करेक्ट। तो परसेंटेज इंक्रीज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ये यशस्वी, इज इट ओके यशस्वी? ओके Harsh, what question you are asking from simple equation? Harsha, Share the screen. Sir, we can't see the left hand side. Letter M we can.
Mean, median, mode. Find first. Nirmai. Mod is 30, correct. Sir, Ah, sir, may I tell mean and median? no. प्रणति, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? सबका ही कैमरा ऑफ है भाई, क्या पता क्या कर रहे हैं? They are watching or not? Rishi saying what is mean? Ayush is not present today. Sir, can I tell mean and median? अभी जयंत ने पूछा मुझे, रेज योर हैंड्स बेटा, रेज योर हैंड, जिनका आ रहा है आंसर रेज योर हैंड्स। हर्ष एंड जयंत, बताओ भाई, 80 में से 2 बच्चों का आंसर आता है, 3 बच्चों का आंसर आता है, क्या क्लास ये है? Here already given here, median is 30. Ira, will you tell us how the median is 30? जयंत और शार्दुल, भव्या, मीन इज 201। 201 कहाँ चला जाएगा भाई? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, इनमें से बीच में से कहीं आंसर आएगा। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, है ना, जो इन सबको रिप्रेजेंट करे। How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is the sum you all got? 201? 201. Yes, sir, 201. Yes, sir, 201. 201 divided by 7. 7. 7 7 जा 61 आ रहा है ना, तो 7 8 का 8 sir. Sir, the answer will be in the decimal. हाँ, Sir, mean is 28.7. 28.7. Sir, 28.71.
The middle term is 30 and mod is 1. Median and mode are same. Yeah. अच्छा एक पोल कर रहे हैं अभी 30 सेकंड्स का टाइम है आप सबके पास. There is a question I am asking to all of you. Okay, so be ready. 30 सेकंड में इसका आंसर देना है. ठीक है? Are you all ready? Okay, be ready. Yes, sir. Sir. आपकी स्क्रीन पे पोल का क्वेश्चन आएगा. 1, 2, 3. Which is better you feel for learning math? YouTube or Teachment? Time is up. Eighteen are telling YouTube is Teachment is correct. Very good. Sir, Teachment is correct. Teachment is better for you all, I think. Sir, how many are telling YouTube? How many are telling Teachment? 3. Oh, okay. Sir, 3 are telling YouTube. Yeah. Fine. That's all. Means. No, sometimes we may take on YouTube, but the maximum I think because of interaction, because you people give your very important inputs. That's why I feel that I should conduct it. Fine. So thank you everyone. We'll meet tomorrow. Be ready with your doubts if you have. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind.